سابق وزیر اعظم عمران خان مسلسل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. اپنے بیانیے کو درست ثابت کرنے کے لیے حقائق کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں. ان کے زیادہ تر دعوے حقائق کے برخلاف ہوتے ہیں. حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے, مگر ایک دعویٰ غلط ہوتا ہے تو وہ نیا دعویٰ کر دیتے ہیں, اور وہ بھی حقائق کے برعکس ہوتا ہے. اپنی غلطیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتے ہیں اور دوسروں کے کام کا کریڈٹ خود کو دے دیتے ہیں, اور یہ بار بار کر رہے ہیں. گزشتہ روز سابق وزیر اعظم عمران خان نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے کارکنوں نے یورپی یونین کی ڈس انفو لیب کو بے نقاب کیا, جس میں 800 فیک ویب سائٹس تھیں جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھیں. اس میں پاکستان کے کئی صحافی بھی شامل تھے جو اس حکومت کے ساتھ نظر آتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں, یا یاد ہو یا نہ ہو, ہمارے سوشل میڈیا کے جنونی نوجوانوں نے ایک چیز ایک بے نقاب کیا جس کو کہتے تھے یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب. یہ کیا تھی؟ اس میں تقریباً 800 فیک سائٹس تھی, اور یہ فیک سائٹس کیا کر رہی تھی؟ یہ مسلسل پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی, جس میں کئی پاکستان کے صحافی بھی شامل تھے. کئی وہ لوگ شامل تھے جو آج اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ آپ نظر آتے ہیں. یہ دو لوگوں کو اٹیک کر رہے تھے, ایک عمران خان کو اور ایک پاکستانی فوج کو, اور تکلیف یہ تھی کہ یہ ساتھ چل رہے ہیں. عمران خان کا یہ دعویٰ مکمل طور پر غلط بیانی پر مبنی ہے. پاکستان کے خلاف بھارت کی طرف سے جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈا کا معاملہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے کارکن نہیں, بلکہ سب سے پہلے جیو نیوز 2016 اور 2017 میں سامنے لایا تھا. ہم نے اپنے پروگرام میں یہ معاملہ اٹھایا اور جیو نیوز کے ساتھ ہی مرتضی علی شاہ تفصیلات سامنے لے کر آئے. اس وقت عمران خان کی حکومت بھی نہیں تھی. پھر ایو ڈس انفو لیب کی رپورٹ 2020 میں سامنے آئی تو اس نے ان معاملات کی تصدیق کی اور بھارتی پروپیگنڈا کی ساری حقیقت کھول کر رکھ دی. تو پھر ہم نے اس رپورٹ کو بھی تفصیل سے کور کیا, حقائق عوام کے سامنے رکھے, جس میں ایو ڈس انفو لیب نے خود بھارتی میڈیا کو بے نقاب کیا تھا. یعنی تحریک انصاف کے جنونی کارکنوں نے ایو ڈس انفو لیب کو بے نقاب نہیں کیا تھا جیسا کہ عمران خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں, بلکہ ایو ڈس انفو لیب نے بھارتی نیٹ ورک کو بے نقاب کیا تھا, جس کا کام ہی جعلی خبریں پھیلانے کے نیٹ ورکس کے خلاف ریسرچ کرنا اور انہیں بے نقاب کرنا ہے. اور ایو ڈس انفو لیب کے مطابق اس پروپیگنڈا میں پاکستانی صحافی ملوث نہیں تھے. حقائق سے ان کا جائزہ لیتے ہیں. 2016 اور 2017 میں ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ بھارت کس طرح سے دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کر رہا ہے, پاکستان کے خلاف منفی خبریں پھیلا رہا ہے اور پاکستان مخالف بیانیاں بنا رہا ہے, لابنگ کر رہا ہے. رواں ماہ کے آغاز سے اچانک سے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں بلوچستان سے متعلق پوسٹرز اور بل بورڈ جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں. پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ سے متعلق منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا. اس پروپیگنڈے کے پوسٹرز رکشوں پر اور ٹیکسیوں پر چسپاں ہیں, اور اس مذموم مہم کی ٹائمنگ اور مقام بہت اہم ہے. یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب جنیوا میں اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کاؤنسل کا 36واں اجلاس ہو رہا ہے. انسانی حقوق کی کاؤنسل کا 36واں اجلاس ہو رہا ہے. گزشتہ سال بھی ستمبر کے مہینے میں جنیوا میں ایسا ہی کچھ ہوا تھا, لیکن گزشتہ سال بھی اس کام کو انجام دینے والے پیسے دے کر کرائے کے مظاہرین لائے گئے تھے. پچھلے سال بھی جنیوا گئے تھے. پچھلے سال کی نسبت اس سال جو کیمپین ہے وہ کیا مختلف ہے, زیادہ بڑی ہے, کیا فرق ہے؟ یہ بہت بڑی کیمپین ہے. اس کی اگر آپ کاسٹ کا اندازہ لگائیں تو یہ تقریباً 2.5 سے 3 ملین فرینکس تک کی اس کی کاسٹ بنتی ہے. جو بلوچستان ہاؤس نامی تنظیم ہے اس نے پوسٹرز لگا رکھے ہیں جو پاکستان کا جو اس کی جو جغرافیائی جو وحدت ہے اس کے خلاف جن پر نعرے درج ہیں. اس طرح کی کیمپین کم از کم 10 سال سے میں جنیوا کور کر رہا ہوں. میں نے اتنی بڑی کیمپین اس لیول پر نہیں دیکھی, اور یہ بہت منظم انداز میں چلائی جا رہی ہے. یہ پوری نئی ویب سائٹ سیٹ اپ کی گئی ہیں, نئی تنظیمیں سامنے آئی ہیں. یہ پورا ایک نیا جو سٹرکچر ہے وہ سامنے آیا ہے. اس کے پیچھے جو مختلف فرنٹس ہیں, جو لوگ اس وقت اس کو فرنٹ کر رہے ہیں, اس میں آپ کو سارے لوگ مقامی نظر آ رہے ہیں جو مختلف یورپین ممالک کے ہیں, جو وائٹ ہیں وہ ہیں. لیکن وہ ان سب سے جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پیسے دیے گئے ہیں اور وہ ہائیڈ ہیں اور یہ کام کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ان کے لیے تو یہ ایک ڈے جاب ہے, وہ یہ کام پاکستان کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اور پھر دسمبر 2020 میں اس پورے نیٹ ورک کو یورپی یونین نے فیک نیوز یعنی جھوٹی خبروں کے حوالے سے کام کرنے والے تحقیقاتی ادارے ایو ڈس انفو لیب نے بے نقاب کر دیا, جو 2019 میں جاری ہونے والی تحقیقاتی رپورٹ کا تسلسل تھا. رپورٹ کے آغاز میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال ہم نے 65 ممالک میں 265 جعلی میڈیا کے نیٹ ورک کا سراغ لگایا تھا جو پاکستان کے خلاف منفی مواد تیار کرتا تھا. یہ نیٹ ورک ان مشکوک کرداروں نے بنایا
जो यूरोपीय पार्लियामेंट के जाली मैगजीन EP टुडे के पीछे थे। ये मैगजीन 2006 से ब्रसल्स में फाल था। यह खुद साख्ता मैगजीन यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान और दीगर सियासतदानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां वो ख्यालात का इजहार कर सकते थे, खासतौर पर ऐसे ख्यालात जो भारत के मुफाद में और पाकिस्तान के खिलाफ हों। उनमें कुछ यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट और दीगर सियासतदान अक़वाम मुत्तहिदा के साइड इवेंट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अक़लियतों के हुकूक के इदारों के मुजाहरों में शिरकत करते हैं, जिनका इनेकाद यही मशकूक किरदार करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तहकीक में यह बात सामने आई कि द टाइम्स ऑफ जेनेवा नामी एक जाली मीडिया और उसके साथ मुबैना तौर पर जेनेवा में काम करने वाली 4 न्यूज एजेंसी तहरीरी और वीडियो कंटेंट तैयार करती है, जिसे ये NGOs ऑनलाइन इस्तेमाल करती हैं और फिर भारतीय न्यूज एजेंसी ANI और दीगर जाली मीडिया नेटवर्क के जरिए फैलाया जाता है। इस सारे ऑपरेशन का ताल्लुक दिल्ली में वाक़या श्रीवास्तव ग्रुप से जुड़ता है, जिसने वुमेन्स इकोनॉमिक एंड सोशल थिंक टैंक की पार्टनरशिप के साथ यूरोपीय यूनियन के 27 अरकान के दौरा कश्मीर को स्पॉन्सर किया और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी कराई। रिपोर्ट के मुताबिक तहकीक में हमने इन वेबसाइट्स, डोमेन नेम्स और ईमेल एड्रेसेस को छोड़ दिया था, जिसमें मजीद छानबीन की जरूरत थी और पिछले कुछ महीनों के दौरान हमने इन मामलात को मजीद गहराई से देखा और अपनी तवज्जो कमीशन टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस नामी NGO पर रखी। रिपोर्ट के मुताबिक छानबीन बाद हमें इस बात का एहसास हुआ कि ये अमरीकी NGO जो अक़वाम मुत्तहिदा के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से तस्लीम शुदा है, वो 70 की दहाई से गैर फाल हो गई थी और फिर 2005 में जाकर अचानक दोबारा से फाल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस इदारे की शनाख्त को इन्हीं अनासिर ने हाईजैक कर लिया, जिनकी निशानदही हमने अपनी हालिया तहकीक में की थी और हैरानकुन तौर पर हमें ये पता चला कि ये इदारा न सिर्फ दोबारा मंजर आम पर आया, बल्कि इसके साबिक चेयरमैन, जिन्हें अमेरिका में आलमी कवानीन बराए इंसानी हुकूक के बानियों में समझा जाता है और जो 2006 में ही इंतकाल कर चुके थे, उन्होंने इस इदारे के जरिए 2007 में अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल बराए इंसानी हुकूक के इजलास में शिरकत की और 2011 में फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से वाशिंगटन DC में जो तकरीब मुनक़िद हुई उसमें भी शिरकत की। यानी तहकीक के मुताबिक जो मोतबर इदारे गैर फाल हो गए थे, उन्हें दोबारा फाल किया गया और मारूफ कानूनदान जो इन इदारों से वाबस्ता थे और इंतकाल कर गए थे, उन्हें जिंदा जाहिर किया गया और फिर ये दिखाया गया कि वो इन इजलासों में शिरकत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि इदारों की साख को मोतबर दिखाया जा सके और फिर उनके जरिए प्रोपेगेंडा करके अपने मफादात हासिल किए जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक इस इंकिशाफ के बाद से हमने अक़वाम मुत्तहिदा से तस्लीम शुदा NGOs के एक पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जो भारतीय मफाद की तशहीर करते हैं और मुस्तकिल पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हैं। NGOs में 10 ऐसी हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक श्रीवास्तव ग्रुप के साथ पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा से तस्लीम शुदा NGOs इन गैर तस्लीम शुदा थिंक टैंक्स और NGOs बराए अक़लियती हुकूक के साथ हम आहंगी के साथ काम करती हैं, जो ब्रसल्स और जिनेवा में ऑपरेट करती हैं, जिसमें से यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पाकिस्तानी मिनॉरिटीज, बलोचिस्तान हाउस और साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम शामिल हैं, जिन्हें बराह रास्त मगर मुबहम अंदाज में श्रीवास्तव ग्रुप की तरफ से तश्कील दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिनेवा के अंदर इन थिंक टैंक्स और NGOs का काम लॉबिंग करना, मुजाहरे करना और अक़वाम मुत्तहिदा के साइड इवेंट्स में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना है और इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा इदारों की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा में बार बार फ्लोर दिया गया है। रिपोर्ट में इस बात का जायजा लिया गया कि किस तरह भारतीय मीडिया यूरोपीय यूनियन से ऐसे बयानात को मुंसलिक कर रहा है जो यूनियन के बजाय सिर्फ पार्लियामेंट के एक रुकन की राय होती है, जिसका तरीका यह होता है कि पहले यह बयान EU क्रॉनिकल्स में शाया होता है और फिर इसे भारतीय मीडिया उठाकर अपना रंग दे देता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय न्यूज वेबसाइट ने एक खबर चलाई कि यूरोपीय पार्लियामेंट ने भारतीय फौज की पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की हिमायत की, लेकिन दरअसल ये सिर्फ एक रुकन की राय थी, न कि पूरी यूरोपीय पार्लियामेंट की राय थी। इसी तरह DNA नामी वेबसाइट ने खबर चलाई कि यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान से मुताल्लिक कहा है कि भारत में दहशतगर्द चांद से नहीं आ रहे, लेकिन दरअसल ये सिर्फ एक रुकन का बयान था। रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह DNA नामी वेबसाइट पर खबर चलाई गई कि कश्मीर में यूरोपीय यूनियन के वफद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर दहशतगर्द पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन दरअसल ये यूरोपीय यूनियन का सरकारी वफद ही नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक EU क्रॉनिकल्स में जो आर्टिकल शाया होते हैं, उन्हें सिर्फ एक ही जरिए से कवरेज मिलती है और वो जरिया इंडियन प्रेस एजेंसी का है, जो अक्सर इन आर्टिकल्स को आजाद मीडिया EU क्रॉनिकल के नाम से शाया करता है और उनकी रीपैकेजिंग भी करता है। रिपोर्ट के मुताबिक ANI, जो भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी में शुमार होती है, वो जेनेवा में काम करने वाले मशकूक NGOs को बड़े पैमाने पर कवरेज देती है और ANI की तरफ से इन चीजों की कवरेज और मालूमात को अपना रंग देने से हम एक नतीजे पर पहुंचे और हमें बिग न्यूज नेटवर्क और वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क का सुराग मिला। ये नेटवर्क 95 ममालिक में 500 से ज्यादा जाली लोकल मीडिया के जरिए चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मनफी चीजों को रिप्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक तहकीक के दौरान ये चीज भी महसूस की गई कि जो भी मवाद बनाया जा रहा है इसका प्राइमरी टारगेट भारतीय शहरी हैं और कवरेज का दायरा यूरोपीय पार्लियामेंट के अराकीन, यूरोप के एनजीओ और इन मीडिया के इर्द गिर्द घूमता है जिन्हें बामुश्किल ही कोई जानता है। रिपोर्ट के मुताबिक बिग न्यूज नेटवर्क एक खुद साख्ता न्यूज एजेंसी है। इसके पास 450 से जायद मीडिया इदारों की मिल्कियत है और 450 मीडिया वेबसाइट्स में ज्यादातर वेबसाइट्स पर सिर्फ कॉपी पेस्ट किया जाता है। इनका मवाद भी ओरिजिनल नहीं होता है। ये इदारे ज्यादातर न्यूज वायर कंपनीज, आलमी मीडिया और भारतीय न्यूज एजेंसी का मवाद कॉपी पेस्ट करते हैं। डिसइंफो लैब की तहकीक के मुताबिक हमारी तहकीक से ये जाहिर होता है कि जो ऑपरेशन श्रीवास्तव ग्रुप ने शुरू किया और जिसे बढ़ाने में भारतीय न्यूज एजेंसी एएनआई ने अहम किरदार अदा किया, वो ऑपरेशन 2005 से शुरू हुआ है और अब तक चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद इन ममालिक को बदनाम करना है जो भारत के साथ तनाजे में हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान और एक हद तक चीन भी। इस ऑपरेशन के तवील मुद्दती मकासद में भारत के अंदर प्रो इंडियन और एंटी पाकिस्तान जज्बात को कुव्वत फराहम करना, आलमी तौर पर ताकत का हुसूल और भारत की साख को बेहतर करना और दीगर ममालिक की साख को नुकसान पहुंचाना है ताकि यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों से मदद हासिल की जा सके। इसके अलावा ब्रसल्स और जेनेवा समेत दुनिया भर में जाली मीडिया की तश्कील करना और एएनआई के जरिए मालूमात की तरसील करना और 97 ममालिक में मुबहम मीडिया नेटवर्क के जरिए इन ममालिक के खिलाफ मवाद को बार बार चलाना भी मकासिद में शामिल है जो भारत के साथ तनाजे में है, बिलखुसूस पाकिस्तान। रिपोर्ट के मुताबिक ईपी टुडे और ईयू क्रॉनिकल्स के पीछे जो अनासिर हैं उन्होंने 550 से ज्यादा एनजीओ की, थिंक टैंक्स की, मीडिया की, मजहबी इदारों की और यूरोपीय पार्लियामेंट के इनफॉर्मल ग्रुप्स की डोमेन नेम्स रजिस्टर करवाई हैं। इंडियन क्रॉनिकल्स को आसान अल्फाज में समझा जाए तो वो यूं है कि यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट से लॉबिंग करवाई जाए, मशकूक थिंक टैंक्स बनाए जाएं, अक़वाम मुत्तहिदा की गैर फ़ाल एनजीओ को दोबारा फ़ाल किया जाए, जाली वेबसाइट बनाई जाएं और मामलात और तनाज़ात को अलग अलग रंग देकर कवर किया जाए जो भारत के हक में हो और उसके हरीफ के मुखालिफ हों। फिर इस कवरेज को भारत की न्यूज़ एजेंसी के जरिए कवर किया जाए और फिर जाली लोकल मीडिया वेबसाइट्स इस कवरेज को कॉपी पेस्ट करें और फिर भारतीय न्यूज एजेंसी इस कवरेज को मजीद कवरेज दे। इस तरह झूठ हर जगह फैल जाए। अब ये मामला ना तो तहरीक इंसाफ सामने लाई थी और ना ही पाकिस्तान मुखालिफ इस भारतीय प्रोपेगेंडा में कोई पाकिस्तानी सहाफ़ी शामिल था, मगर इमरान खान ने अपनी पार्टी के सोशल मीडिया कारकुनान को इस सारी रिसर्च का क्रेडिट दे दिया, इस सारे मामले को अपने मुताल्लिक करार दे दिया और एक बार फिर मुकम्मल तौर पर गलत बयानी से काम ले रहे हैं।